एक्चुअली कॉलेज में लाइकली माइंडेड पीपल ढूंढना ना मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत टफ हो चुका है स्टूडेंट्स के लिए। ट्रस्ट मी, वर्ड ऑफ माउथ से बड़ा कोई मार्केटिंग नहीं होता, एंड वर्ड ऑफ माउथ से सस्ता कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं होता है। एक इंजीनियर कुछ भी बन सकता है। अगर एक कंपनी आपको 100 एड्स दिखाती है तो मैं कन्विंस होता हूँ या नहीं होता हूँ मुझे नहीं पता, बट व्हेन आई हैव अ फ्रेंड नियर मी जो बोलता है नहीं यार अच्छा है, तो मेरे को वो ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। I totally support the students who used to start their journey as entrepreneurs or founders in their college itself. Because at the end यार हम सबको पता है कि 10 में से एक बंदा ही आगे जाएगा, बट उस जर्नी से ना आपको आपकी लाइफ में एक एज मिल जाता है आगे बढ़ने का। So here's a similar example with us today. I am Arav Gupta, the founder of Collegepreneurs, and let's welcome today Manish Agarwal, the co-founder of Prep Insta, Forbes 30 under 30 Asia. So guys, do subscribe the channel if you're liking this algorithm. Hi Araf. So first of all, thank you for this opportunity of letting me speak to the cool young college entrepreneurs who were like trying to build their journey or start their journey. So yes, Araf, tell me. सर एज वी नो कि बहुत सारे टीनेज फाउंडर्स हो रहे हैं आजकल की जर्नी में, एंड एट दी एंड थोड़े से ही उसमें से अपना फुल टाइम परस्यू कर पाते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। तो आप आजकल के टीनेज फाउंडर्स को क्या कहना चाहोगे अपनी जर्नी से रिलेट करने? So yeah, what I personally believe is entrepreneurship journey need not always start with your startup. It can always start from your childhood or from your school time or from your college time itself. So for example, even for I started or we started Prep Insta, I was a part of a lot of events in the college wherein it was also an entrepreneurship journey wherein you have to get an idea, you have to do the fest, you have to manage the money, you have to get people, you have to do the marketing, you have to do the operations and everything, right? तो वहीं से ऐसा होता है कि यार ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक आइडिया पहले ढूंढना और ये करना है। देयर आर पीपल जिनको पहले से ही इंटरेस्ट होता है चीज़ों में करने का। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वन, इवन दो आई जॉइंड अ कॉर्पोरेट, बट आई ऑलवेज न्यू इनसाइड आउट कि यार मैं कॉर्पोरेट में अगर जाता भी हूँ तो आई नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू कि मेरे अंदर वो एक है कि मेरे को कुछ करना है। आई वॉन्ट टू रिस्क इट, एंड ऑल्सो आई वॉज ग्लैड एंड आई होप, सी apart from this, even if you are motivated enough to do things, you also need support from your family sometimes, cause to take such a risk in your life you should always have your family support. I'm not saying they should be rich enough to support you, it's just that they should be supportive कि ठीक है, if you want to try you try, अगर आप फेल होते हो पास होते हो whatever it is, ultimately make sure you learn out of it. So if you own that, if you have that risk taking ability, I think आपको जाना चाहिए। Sir, due to reports, in 2016, there were lots of companies who were engaging in the field of providing internships. तो आपने भी जब भी Prep Insta स्टार्ट करा था, एंड होपफुली आपने रिपोर्ट्स वगैरह देखी होगी। सर आपने किस होप से करा था दैट ये मॉडल आपका सस्टेन कर जाएगा लॉन्ग टर्म में? So yeah, I'll tell you. So I think this is where I have to talk a little bit about Prep Insta and the journey. So basically when we were in our college time, so होता क्या था, we were even lucky enough to pass out from VIT Vellore, जहाँ पे we used to get a lot of placement opportunities and a lot 300 350 plus odd companies used to visit on campus. But we also used to talk to our friends from other colleges which were tier 2 tier 3 colleges. वहाँ पे कंपनीज नहीं आती थी, इवन दो आई पर्सनली न्यू कि दैट गाय इज इवन मोर स्मार्टर देन मी, बट कॉज उसके 12th में मे बी ही डिडंट स्टडी वेल और उसके फैमिली डिड नॉट हैव इनफ मनी और सपोर्ट टू गेट हिम इनटू अ वेरी बिग कॉलेज, फॉर दैट रीजन ही एंडेड अप। बट उसने 4 साल पहले क्या किया हैज नथिंग टू डू विथ वो इंजीनियरिंग करने के 4 साल बाद कहाँ अपॉर्चुनिटीज लेना चाह रहा है। सो फॉर दैट व्हाट हैपेंड वाज वी गॉट दिस आइडिया, हमने इसे नेल भी किया, एंड कॉज दैट पॉइंट इन टाइम हम एक एंड यूजर थे इस प्रोडक्ट के, क्योंकि हमने देखा मार्केट में क्या जरूरत है, क्या मिसिंग है, एंड दैट इज वेयर वी थॉट ऑफ बिल्डिंग this company. Now when I personally went out in the market to check yaar acha I need few skills to get my job, get a premium job, but the courses were all 25,000 के 30,000 के 40,000 के कोर्स थे, ठीक है, their mindset is different, but the problem was me being an engineering student, मेरे पास नहीं होते 20-40,000 एंड मैं जस्टिफाई भी नहीं कर सकता अपनी फैमिली को, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी टॉकिंग वेरी फ्रेंकली, घर वालों को लगेगा मे बी ये किसी और रीजन से पैसे ले रहा है या पार्टी करेगा, बट अल्टीमेटली इट्स वेरी टफ टू गेट 20-30-40,000 एडिशनली फ्रॉम योर फैमिली, अपार्ट फ्रॉम विच दे आर ऑलरेडी पेइंग फॉर योर कॉलेज, हॉस्टल्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यार, और मुझे और मेरे अदर 2 को-फाउंडर्स आशा एंड अब्दुल्ला, दे ऑल्सो फेल्ट कि नहीं यार, वी शुड बी केटरिंग
टू एन ऑडियंस जहाँ पे हम टीयर 2 टीयर 3 को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे पाए, क्योंकि मे बी एक टीयर 1 का बच्चा ही इज़ ऑलरेडी इन टू अ गुड कॉलेज, हो सकता है वो एक अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता हो, तो मे बी मे नॉट बी हिल बी एबल टू अफोर्ड अ 30,000 का कोर्स, बट डेफिनेटली अ टीयर 3 स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। वहीं पे हमने देखा कि देयर इज अ नीश इन द मार्केट, सो हमने उसको डेमोक्रेटाइज करना चाहा, जहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट बिल्ड किया जिसकी एवरेज कार्ट वैल्यू एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज समवेयर अराउंड 2,000-2,500 रुपीज, विच वाज हेल्पिंग अ स्टूडेंट टू गेट एम्पल नॉलेज, जो एक 30,000 का कोर्स उसे दे पा रहा था। सर मतलब आपने जब अपने को फाउंडर्स के साथ कम्युनिकेट करा, स्टार्ट करा, उसकी मैं जर्नी आपसे पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली कॉलेज में लाइकली माइंडेड पीपल ढूंढना ना मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत टफ हो चुका है स्टूडेंट्स के लिए। उनको सही माइंडसेट के बच्चे मिलते ही नहीं जो मैच कर पाए, म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर पाए दोनों के तरीके, काम करने के प्रोसीजर्स। वो अपने कैसे ढूंढे? ऐसा ही सही कि यार को फाउंडर एक अच्छा वो नहीं होता जो आपके जैसा हो बिल्कुल और आप फाइट नहीं करते हो। इन दैट केस तो यू डोंट इवन नीड हिम एज अ को फाउंडर, क्योंकि फिर तो आप दोनों सेम हो, तो फिर अलग एक्सपर्टीज कहाँ से आएगी एक स्टार्टअप में। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि यार आप दोस्त हो, आप लड़ते हो, बट व्हेन यू एक्चुअली फाइट, वो फाइट कैसे एंड होती है? द फाइट शुड एंड वेरी कंस्ट्रक्टिवली, जहाँ पे आप एक दूसरे को समझ पाते हो, आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाते हो और आप कलेक्टिवली एक डिसीजन ले पाते हो। दोज 2 और दोज 3 पीपल आर गुड को फाउंडर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट मी, आशय एंड अतुल्य ऑल्सो पर्सनली, हम तीनों दोस्त हैं, हम तीनों लड़ते हैं, हम तीनों बहुत डिफरेंट हैं, हम तीनों के माइंडसेट्स और हम तीनों की एक्सपर्टीज बहुत अलग है। एंड दैट इज वेयर व्हेन वी 3 केम टुगेदर वी मेड अ होल सर्कल। अगर हम तीनों में सेम क्वालिटीज होती तो हम एक चीज पे ही तीनों फोकस करते, बट बाकी 2 चीजों पे कौन करता? एंड दैट इज वेयर वी थिंक वी वर लकी इनफ कि वी फाउंड ईच अदर एंड वी आर हियर द डे। सर इनिशियली कॉलेज डेज में कैसे मतलब आइडिया किसने पिच करा और मतलब कैसे बात स्टार्ट? यार सो इन आवर केस ऑनेस्टली अतुल्य स्टार्टेड इट। शुरुआत में आइडिया उसका था, ही डिड इट। कॉलेज में ही स्टार्टेड अ ब्लॉग विच वी न्यू अबाउट एंड ही वाज वर्किंग अपॉन इट। उस टाइम पे हमारा इतना फोकस उस पर नहीं आया था। लेटर हमने जब कॉलेज ख़त्म किया एंड लकीली वी स्टार्टेड आवर जॉब, फर्स्ट जॉब, एंड दैट टू इन बैंगलोर, एंड वी वर वहाँ पे भी लिविंग टुगेदर। ओके। सो वहाँ पे वंस वी वर डन विद आवर वीकेंड पार्टीज एंड एवरीथिंग, हम लाइक यार अब कुछ और भी करते हैं। एंड देन वी हैड दैट आइडिया एंड लकीली सब कुछ एक साथ ही हुआ कि उस ब्लॉग्स पे भी हिट आने लगे एंड देन हमें भी इंटरेस्ट आया कुछ करने का, एंड देन इवेंचुअली वी स्टार्टेड इट। एंड दैट वाज अ टाइम जहाँ पे हम रिस्क लेना चाहते थे, बट इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमें भी नहीं थी, तो वी वर ट्राइंग टू डू बोथ ऑफ द थिंग्स टुगेदर, लाइक वीकेंड्स पे टाइम निकालना है, ऑफिस के बाद टाइम निकालना। एंड देन even though I say कि मेरी family was supportive enough, it took me even 3, 4, 5 months to convince them, but yes, eventually वो भी आपके अंदर कितना perseverance और आपके अंदर कितना confidence है, उसी से आप अपनी family को भी convince कर पाते हो। जब तक आप खुद confident नहीं होते, you'll not be even able to convince your family or friends or whoever. आई थिंक ये हर केस में ही होता है, नॉट इवन फैमिली। So that was a thing. So again, अपार्ट फ्रॉम दिस यार, क्योंकि हमें पता था कि ये प्रोडक्ट मिसिंग है मार्केट में, हमने खुद उसे नेल किया था। मी, आशय, अतुल्य, वी गॉट मल्टीपल ऑफर जब हम कॉलेज में थे। सो दिस एक्चुअली हेल्प्ड अस कि हमें बिलीव था अपने प्रोडक्ट पे, क्योंकि इवेंचुअली ठीक है यू बिल्ड अ प्रोडक्ट अपनी खुशी के लिए, बट आप ये मत भूलो कि यार बिल्डिंग द प्रोडक्ट फॉर द एंड यूजर। प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है इज ओके, नहीं भी लग रहा है इट्स ओके, बट अल्टीमेटली वट एवर यू आर बिल्डिंग आपके एंड यूजर को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका कस्टमर बनेगा। अगर आपके कस्टमर को ही समझ नहीं आ रहा प्रोडक्ट, तो सिर्फ आपको पसंद आने से विल मेक नो सेंस। सर एज आई पर्सनली बिलीव कि मार्केटिंग मेरा डोमेन है, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि प्रेप इंस्टा की जर्नी में आप मतलब कैसे कैक वगैरह मेंटेन करते हो आपके ओवरफ्लो का? सी एज आई सेड कि हमारा फोकस हमेशा से एक था कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है विच इज़ वेरी लो कार्ट वैल्यू, क्योंकि हमें रीच करना है मासेस में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एक्सप्लेन कि यार अगर एक कंपनी है जो 30,000 का कोर्स बेचती है करेंटली, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन एज सच, तो दे ऑल्सो हैव अ कैक ऑफ अराउंड 15,000 17,000 रुपीज़। सो अगर वो एक यूज़र से 13,000 रुपये बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली उस केस में वो बेच भी 10 लोगों को पाता है। हमारे केस में फोकस ये था कि हम हमारा कैक लो रखेंगे। अगेन टू एक्सप्लेन, कैक इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, विच इज़ बेसिकली कि आप एक प्रोडक्ट को एक कस्टमर तक फाइनली बेचने के पहले तक प्रोडक्ट में और मार्केटिंग में कितना स्पेंड करते हो, सो दैट आप एक
एंड यूजर को प्रोडक्ट बेच पाते हो, दैट इज कैक। हमारा फोकस था कैक। सो नाउ कैक को आप कम रखने का, सो इन आवर केस हाउ इट वर्कड वाज, सी आई बिलीव इन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड ओपिनियन लीडरशिप। ओपिनियन लीडरशिप क्या होता है बेसिकली यार, जब आप खुद ही, आप कस्टमर हो बट आप खुद को वो प्रोडक्ट इतना अच्छा लगे कि आप जाके अपने दोस्तों से बोलने लगो कि भाई यार यूज करके हो देख, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तेरे को मजा आएगा। वेरिन द कंपनी इज नॉट आस्किंग मी टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे अपने दोस्तों को गाना या विंग से स्पॉटिफाई पे मूव किया। Are you talking about referrals? Yes, I'll come to that. So that is one thing. So that is the referrals come word of mouth as well. अगर एक कंपनी आपको 100 एड्स दिखाती है तो मैं कन्विंस होता हूँ या नहीं होता हूँ मुझे नहीं पता, बट व्हेन आई हैव अ फ्रेंड नियर मी जो बोलता है नहीं यार अच्छा है, मैंने यूज किया है, फिर मेरा एक सीनियर जो बोलता है कि नहीं यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूज करके देख, तो मेरे को वो ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, विच आई फील। एंड दैट इज वेयर वी ऑल्सो फॉलोड द सेम आइडिया, जहाँ पे इवन इफ वी आर अ कंपनी फॉर द लास्ट 5 years, दिस वॉज द फर्स्ट ईयर इन टू द बिजनेस जहाँ पे हमें टेस्ट करना था, एंड वी स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन थिंग्स लाइक परफॉर्मेंस मार्केटिंग। उसके पहले 4 साल तक वी हैव स्पेंड 0 rupees ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आवर एंटायर फोकस वाज ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस, कि उसका परचेज एक्सपीरियंस एंड पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस में इतना अच्छा बनाऊं कि वो खुद ही अपने दोस्तों में बात करे और वो खुद ही मेरा वर्ड ऑफ माउथ करे। एंड ट्रस्ट मी, वर्ड ऑफ माउथ से बड़ा कोई मार्केटिंग नहीं होता, एंड वर्ड ऑफ माउथ से सस्ता कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं होता, एंड दैट इवेंचुअली हेल्प्स यू डिक्रीज योर कैक। सर एज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपने अपने आप को एज अ मार्केटिंग गाय कैसे डिफाइन करा? यार एज यू से कि यार एक इंजीनियर, एक डॉक्टर बनता है, एक सीए अल्टीमेटली सीए बनता है, बट एक इंजीनियर कुछ भी बन सकता है। सो दैट वाज व्हाट इट वाज यार, इंसान ने करा। इंसान अल्टीमेटली एक टीचर के सामने, किसी के भी सामने अपने आप को मार्केट ही कर रहा होता है, राइट? फॉर मार्क्स, समटाइम्स फॉर असाइनमेंट्स, फॉर एक्सक्यूजेज और फॉर लीव्स, यू जस्ट मार्केट योर प्रॉब्लम्स या यू मार्केट योर सोल्यूशन सो दैट आपको वो मिले जो आप चाहते हो। इवन आप फैमिली में भी यू हैव टू मार्केट अ लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट आपको अल्टीमेटली जो चाहिए वो मिले। सो वो एक इंसान का ट्रेट होता है, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इंजीनियरिंग और आप कहाँ से हो क्या हो, दोज आर थिंग्स। एंड देन इवेंचुअली यार व्हेन यू डू थिंग्स यू लर्न, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, फेल करते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आप बुक्स पढ़ लेते हो। उसके अलावा आज के टाइम पे इवन मोर देन बुक्स यू सी अ लॉट ऑफ रील्स जहाँ पे लोग ज्ञान दे रहे होते हैं मेरे जैसे, तो आप उनको सुनते हो, एंड देन इवेंचुअली आपको वहाँ से समझ आती है। इट्स ऑल अबाउट, देखो सही क्या है गलत क्या है ये आपको कोई बता नहीं सकता। बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि आपको लगता है दोनों सही है, यू हैव टू ट्राई आउट। आई एम सेइंग व्हेन यू वांट टू ट्राई इट आउट मार्केटिंग में, यू डू इट ऑन अ स्मॉलर स्केल। आप एक छोटे सैम्पल स्पेस पे चीज़ों को ट्राई करके देखते हो, एंड देन एनालाइज करते हो कि क्या मेरे लिए काम किया, काम नहीं किया। वेर इन डेटा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप छोटे से डेटा पे आप अपने टेस्ट रन करके देखो, तब आपको समझ आता है इवेंचुअली, क्योंकि यू नेवर नो। देयर आर सम सेट रूल्स कि यार आपको ये करना होता है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट एवरी प्रोडक्ट इज यूनिक, एवरी कंज्यूमर इज यूनिक। सबका अपना टारगेट ऑडियंस डिफरेंट होता है, सबका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वेरी करती है, एंड इट्स नॉट सेम फॉर एनीवन। इट्स अ फ्यू सेट ऑफ रूल्स, आप उन्हें फॉलो करो, फिर आप उन्हें एनालाइज करो, एंड इवेंचुअली यू विल गेट योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सर आप प्रेबिन्स के कॉम्पिटिटर्स के बारे में कुछ बोलना चाहो? When we talk about competitors, let me not talk about mine as a whole, but eventually it is always also good to have competitors in the market, क्योंकि मार्केट में हेल्दी कंपटीशन होना इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप उससे ग्रो कर पाते हो। अगर आप जैसे मोनोपोली में हो तो यार एक टाइम होता है जहाँ पे हो सकता है आप अपना फोकस उतना ज़्यादा नहीं देते हो चीज़ों पे, क्योंकि आपको पता है यार आपका अल्टीमेटली यू विल एंड अप सेलिंग इट। बट व्हेन यू हैव अ हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट, वो हमेशा आपको एक रूम देता है ग्रो करने का, एंड दैट्स हाउ आई टेक माय कॉम्पिटिटर्स। सर तो एक लास्ट चीज़ जो आप इनिशियली फाउंडर्स को कहना चाहोगे, जो मतलब अपनी जर्नी बस स्टार्ट ही कर रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, छोटा सा आइडिया होगा जिसके बाद जो नए को फाउंडर्स ढूंढ रहे हैं, तो कैसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो वो प्रोसीड कर पाए? देखो, अगर आपके पास आइडिया, आप अपने को फाउंडर्स ढूंढे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड, आप पहले उस आइडिया से खुद इतना कन्विंस हो जाओ। आई एम नॉट सेइंग जबरदस्ती कन्विंस हो, योर आइडिया शुड बी गुड, मतलब आपको खुद से कन्विंसिंग आना चाहिए कि नहीं यार जो मैं ये सोच रहा हूँ ये अच्छा है। आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। इफ यू हैव सेकंड थॉट्स, डोंट डू इट। सेकंड थॉट्स इन द सेंस कि यार क्या होगा आगे जाके, दैट्स नॉट अ सेकंड थॉट। सेकंड थॉट वेन क्या मेरा आइडिया सही में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सी, इट इज ऑल अबाउट आपका आइडिया को एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपको बिल्ड करने में उतना ही ईजी रहता है, इफ यू आर एक्चुअली सॉल्विंग अ गुड प्रॉब्लम।
उसके बाद अगर आप कन्विंस हो, गो टॉक टू योर को फाउंडर्स, फाइंड योर को फाउंडर्स, कन्विंस पीपल एंड फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, राइट? दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इज कि यार डे वन, मैंने बहुत लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो आई रियलाइज कि वो डे वन ही एक परफेक्ट सोल्यूशन, एक परफेक्ट इंफ्रा, परफेक्ट वेबसाइट, एक परफेक्ट सब कुछ बनाना चाहते हैं. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कंपनी, बट देर वॉज मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, एंड देर वॉज अ कंपनी जिसमें उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बेचने का प्लान किया. सो दे बिल्ड द इंटायर वेबसाइट, बट उन्होंने प्लान किया था कि दिल सेल इट फॉर 1 month फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे एंड देन दिल स्टार्ट सेलिंग इट. सो उन्होंने क्या किया कि यार हमें क्योंकि बेचना 1 महीने बाद है, सो राइट नाउ माई फोकस शुड नॉट बी ऑन द पेमेंट गेटवे, ऑन द परचेज पेज. तो उन्होंने 1 महीने तक पेमेंट गेटवे और परचेज पेज ही नहीं बनाया. दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स जो उन्हें आज करनी है, बेस, राइट? एंड डू नॉट मेक कि यार मेरे को एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना है. इवन अगर आज मैं देखूँ प्रेपेंस्टार प्राइम जो दिखता है और आज से 5 साल पहले देखूँ, 5 साल पहले वाला देख के मुझे खुद बुरा लगता है कि मैंने क्या बनाया था. बट यू ग्रो 1 step एट अ टाइम. अब डे वन पे ही आप चाहोगे कि मैं बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट बना दूंगा. No one does it. Sir, thank you so much for gracing me. Thank you, Arav, as well, for giving me this opportunity. I always love, cause for me, rather than doing this, I generally go to colleges, do sessions with students, and that's the best time I feel like यार वो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि wherein I see कि यार there are people there जो मैं अपने आप को देखता हूँ उनमें, क्या 10 साल पहले मैं भी उसी स्टेज पे था, एंड देन आई ऑल्सो हैड सिमिलर क्वेश्चंस. सो इन दैट केस आई ऑलवेज लव टू आंसर देम, क्योंकि मेरे को शायद उस टाइम पे कोई आंसर करने वाला नहीं था. But today, if I have those expertise, I'm not sure I'm expert enough to answer those, but if I have those, I always love to share them. Thank you, sir.